history class. So today we are going to start our new subtopic from our third chapter from class 12 history, that is kinship, caste and class. Okay, and our today's subtopic is social differences within and beyond the framework of caste. Okay, so before moving ahead, I would like to explain, I would like to recall few points from our previous class. That is, in our previous class we have discussed about different type of families that was existed in the society, different types of like perception about the daughter and the son and the patrilineage heritage. Third point is different kind of marriages that was existed in the society. Okay, and the other point is like gotra, different types of gotras, and like the role of mother. Okay, so coming back to our new topic, that is social differences. Okay, in this chapter, as you can clearly see in the subheading, that we are going to discuss about the social differences, especially in the field of caste. So हमें अब सभी को पता है कि what is caste system. It is a varna system. So as we live in India, we were very familiar, we are very familiar with this varna system because it is still prevalent in our society, right? Some are still following these things. So let's start our class. Okay, I'll start by reading the paragraph. You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchical order social categories. The ideal order was laid down in the Dharma Sutras and Dharma Shastras. Brahmanas claimed that this order, in which they were ranked first, was divinely ordained, while placing groups classified as Sudras and untouchables at the very bottom of the social order. Position within the order was supposedly determined by birth. So इसका मतलब है कि आपको पता ही होगा कि कास्ट का मतलब है लाइक वर्ण सिस्टम, है कि नहीं? सो लाइक सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में क्या किया, एक हायरार्किकल ऑर्डर में क्या किया, सोशल कैटेगरीज को डिवाइड करके रखा है. लाइक ये डिवीजन कैसे किस में लेट डाउन है, किस में लिखा गया है, धर्मसूत्रस एंड धर्मशास्त्रस. और ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रस किसने कंपोज किया था? ब्राह्मणस ने कंपोज किया था. तो उनके मुताबिक क्या किया है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ये किसका ऑर्डर है? ये डिवाइनली ऑर्डर है, ये भगवान का ही ऑर्डर है. ठीक है, भगवान ने उन लोगों को क्या दिया, ऑर्डर दिया है कि इस चीज को क्या करना, मेंटेन करना, सोशल कैटेगरीज को मेंटेन करना. सो सोसाइटी में 4 कैटेगरीज है. दैट मीन्स नंबर 1 इज ब्राह्मणा, सबसे ऊपर आता है सोसाइटी में. सेकेंड इज क्षत्रिय. ओके, थर्ड इज वैश्य एंड द फोर्थ वन इज जो सोसाइटी के सबसे नीचे बॉटम में रहते हैं, उसका नाम है शूद्र और अनटचेबल्स. ठीक है, ये चीज उन लोगों ने अपने आप नहीं की, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणस. ये चीज क्या क्या है, डिवाइन ऑर्डर है. ठीक है, भगवान का ऑर्डर है जो उन्होंने क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणस फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सो ये चीज जो भी सोशल कास्ट कैटेगरी होता है, वो इंसान अपने जन्म से ही लेके आता है. ठीक है, इफ आई हैव बोर्न इफ आई हैव टेकन birth in the family of brahmana, that means I am brahmana. Okay, if my birth happens in the family of शूद्रस, दैट मीन्स आई एम शूद्रस. इस इन लोगों का मतलब है बर्थ से ही क्या करता है, आपका कास्ट लेके आता है, वर्ण लेके आती है. ठीक है, किसका क्लेम था? ब्राह्मणास का. सो किस में लिखा गया था? धर्मसूत्रस एंड धर्मशास्त्रस. सो इन दिस सब टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस five points to clarify the social differences that was prevalent during the ancient India, subcontinent India especially. Okay, so today we are going to discuss our first point under this subtopic, that is the right occupation. Okay, so right occupation. What is right occupation? Right occupation means sahi kaam, किसका काम. Okay, let's discuss. The Dharma Sutras and Dharma Shastras also contain rules about the ideal occupation of the 4 categories or varna. Brahmanas were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and receive gifts.
Second is Kshatriya were engaged in warfare, protect people and administer justice, study the Vedas, get sacrifices performed and make gifts. The last three occupations were also assigned to the Vaishyas, who were in addition expected to engage in agricultural, pastoralism and trade. Sudras were assigned only one occupation, that of serving the three higher varnas. So right occupation का मतलब क्या होता है कि लाइक सोशल कैटेगरी के अनुसार उनको आइडल काम क्या करना, देना, ठीक है। जैसे अभी हमारी सोसाइटी में क्या, इफ आई वांट टू बी अ टीचर आई कैन बी अ टीचर, इफ आई वांट टू लर्न English, that is my choice, I can do that, but during that period it is not possible because these brahmanas and this religious textbook have like limited the freedom of the people, okay। So like हमने पढ़ा था कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में क्या है कि इट इज लाइक अ रूल बुक। सो इस रूल बुक में क्या था, फैमिलीज कैसे होते हैं, कुल कैसा होता है, गोत्र कैसा होता है, शादी कैसा वाला लीगल होता है, कैसा इलीगल होता है, ये सब हमने क्या पढ़ा, धर्मशास्त्र में पढ़ा। पर धर्मशास्त्र में दूसरा चीज भी, रूल्स भी लिखा गया, लाइक आइडल ऑक्यूपेशन, राइट ऑक्यूपेशन, ओके। धर्मशास्त्र के अनुसार लाइक ब्राह्मण सबसे ऊपर सोसाइटी के कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर आता है, हायरार्किकल ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, जिसका काम है उनको पढ़ने का भी फ्रीडम है, स्पेशली वेदास, ठीक है। तो वेदा पढ़ने का फ्रीडम है, वो लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं और गिफ्ट रिसीव और गिफ्ट क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये किसका काम है, ब्राह्मणस का काम है, ओके। सेकेंड ग्रुप में आता है हायरार्किकल ऑर्डर में, सेकेंड ग्रुप में आता है क्षत्रियस। क्षत्रियस स्पेशली रॉयल फैमिलीज होते हैं, ठीक है, राजा वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, क्षत्रिय ग्रुप। उनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, वारफेयर करना, अपने लोगों को, सब्जेक्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना और अपने किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस मेंटेन करने का काम किसका था, ये क्षत्रियस का था। और दे आर अलाउड टू स्टडी वेदास एज वेल एंड परफॉर्म लाइक sacrifices and make gifts to the brahmanas, okay। और सोशल कैटेगरी में हायरार्किकल ऑर्डर में थर्ड में कौन आता था, क्षत्रियस आते, सॉरी वैश्यास आते। वैश्यास का काम क्या है, वैश्यास का स्पेशली काम क्या होता है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना, पेस्टोरलिज्म लाइक एनिमल रेयर करना और ट्रेड, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस करना, स्पेशली किसका काम है, वैश्यास का काम है। पर बॉटम ऑफ द लाइक सोसाइटी के सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर में आने वाला लोग कौन था, शूद्रस एंड द अनटचेबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, छुआछूत करते हैं ना, उनको लाइक छोटी जात की बोलते हैं, ठीक है नहीं। अभी भी सोसाइटी में कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो उनका काम है, शूद्रस का काम है जो उसके ऊपर जो थ्री हायर वर्नर्स है उसको क्या करना, सर्व करना, उनका काम करना, ठीक है। उनका काम करना ही क्या है, शूद्रस का आइडल ऑक्यूपेशन है। किसने बोला, ब्राह्मणस ने बोला, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में क्या गया था, लिखा गया था, जो धर्मशास्त्र और अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण, भगवान ने क्या किया है, ये ऑर्डर दिया है, ठीक है। ये डिवाइन क्या है, ऑर्डर है, धर्म लाइक ब्राह्मणस बोलते थे। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। द ब्राह्मणस evolved 2 or 3 strategies for enforcing these norms. One, as we have just seen, was to assert that the Varna order was of divine origin. Second is, they advised king to ensure that these norms were followed within their kingdoms. Third point is, they attempted to persuade people that their status was determined by birth. However, this was not always easy, so prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. So, ब्राह्मण इस चीज को सोसाइटी में लागू करने के लिए, ठीक है, एनफोर्स करने के लिए क्या करते थे, 2-3 स्ट्रैटेजीज अपनाया था ब्राह्मण ने। फर्स्ट स्ट्रैटेजीज क्या था कि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अबव पैराग्राफ दैट ये क्या है कि ये भगवान का ऑर्डर है, इट इज अ डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। ये भगवान से ही क्या हुआ है, उत्पत्ति होके आया है ये वर्ण सिस्टम, ओके। सो ये किसी की ये कोई भी क्या नहीं इनकार नहीं कर सकता, ये कोई भी
ये नहीं कह सकता कि ये वर्ण सिस्टम राइटफुल नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान ने क्या किया, ये भगवान से उत्पत्ति होके आए, डिवाइन ओरिजिन। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लाइक क्षत्रियस ग्रुप थे, राजा, रॉयल फैमिली का काम क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली क्या करना है, एनफोर्स करना अपने सब्जेक्ट को। जो ये रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं मानेगा, मे बी दे विल गेट पनिश्ड, है कि नहीं। सो दूसरा थर्ड पॉइंट था, फोर्सिबली पीपल को क्या करना, अपने बर्थ के अनुसार अपना कास्ट एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये तीन चीज को क्या किया उन लोगों ने सोसाइटी में, ये चीज लागू करने के लिए ये 3 स्ट्रैटेजीज अपनाई, ठीक है। सो उन लोगों ने एज अ महाभारत एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट बुक उन लोगों ने एज अ प्रिस्क्रिप्शन यूज़ किया। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ दवाई लिख के देता है, तो हम दुकान में जाते हैं तो वो हमको दवाई प्रोवाइड करता है। इफ द प्रिस्क्रिप्शन वॉज नॉट देयर, द केमिस्ट विल नॉट प्रोवाइड अस सच मेडिसिन, राइट। सो ऐसे ही ब्राह्मणस ने भी महाभारत और अदर रिलीजियस टेक्स्ट बुक को क्या किया, एज अ प्रिस्क्रिप्शन दो लोगों के सामने रख दिया कि ये देखो, ये तो भगवान ने दिया है, तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, ओके। तो दिस इज द थिंग। सो इसी चीज को उन लोगों ने कैसे लाइक डिस्क्राइब किया, लेट्स डिस्कस। आई रीड वन सोर्स, दैट इज सोर्स 6 स्टूडेंट, ओके। दिस इज माय सोर्स 6 फ्रॉम द राइट ऑक्यूपेशंस, ओके। A divine order. To justify this claim, Brahmanas often cited a verse from a hymn in the Rig Veda known as the Purusha Sukta, describing the sacrifice of Purusha, the primeval man. All the elements of the universe, including the 4 social categories, were supposed to have emanate from his body. The Brahmana was his mouth, of his arms was made of Kshatriyas, his thighs became the Vaishyas, of his feet the Sudra was born. So इस ये एक छोटा सा क्या क्या पार्ट लाइक ऋग्वेदा से निकाला गया है। ऋग्वेदा के एक पुरुषा सुक्ता वाला एक छोटे से वर्ड से निकाला गया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स क्या बोला है, एक आदमी था, लाइक वी हैव ऑलरेडी रीड द एवोल्यूशन ऑफ मैन इन क्लास 12 हिस्ट्री। जैसे जब लाइक प्रेमेबल एंशियंट मैन का जन्म हुआ तो वहाँ पे एक पुरुष मीन्स ह्यूमन, है कि नहीं, आदमी। सो उसके सेक्रीफाइस से हम लोगों का क्या है, यूनिवर्स और हम लोगों का क्या है, उत्पत्ति हुआ है। 4 से सोशल कैटेगरीज का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। सो ऊपर के सर के हिस्से से क्या हुआ, ब्राह्मणा का उत्पत्ति हुआ है। जैसे हाथ, ठीक है, शोल्डर के हिस्से से क्षत्रियस का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। जैसे थाई साइड से, ठीक है, थाई साइड से वैश्यस का उत्पत्ति हुआ है। पर शूद्रस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, पेड़ों से, फीट से उत्पत्ति हुआ था। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये एक ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता वाला एक वर्स में लिखा गया है। सो ब्राह्मण जब भी ये चीज क्लेम करते थे तो यही वर्स को क्या करते थे, रिपीट करते थे। सी कि ऋग्वेदा जब 1000 BC में लाइक क्या हुआ था, कंपोज हुआ था, वहां देखो ये सब कुछ लिखा गया है कि ये भगवान का ही ऑर्डर है। देखिए ऐसा वाला चीज को वो लोग सोसाइटी में रख के क्या करते थे, लोगों को ये चीज फॉलो करने के लिए क्या करते थे, एनफोर्स करते थे, फोर्स करते थे, ओके। परस्यूड का मतलब है फोर्स करना, फोर्स करते थे। सो उस टाइम पे लोग एज यू कैन सी दैट कि वो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि उन लोगों के पास फ्रीडम नहीं था। सो इलिटरेट पीपल थे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था, तो इसीलिए वो लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। सो दे वर बाउंड टू फॉलो ऑल दिस सोशल नॉर्म्स, okay, which was prescribed in Dharma Sutras and Dharma Shastras. So I hope आप लोगों को ये लाइक राइटफुल ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द कास्ट कैसे लाइक स्टार्ट हुआ, आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। सो in our next class we are going to like discuss about the non-Kshatriya kings, okay. So for today this much only. Thank you very much and have a nice day.